If you're targeting to get into statutory audit domain, this video is for you. In this video, I'm going to be discussing what are the most frequently asked questions which are there in Big 4 interview, Big 6 interview, or top companies which mostly hire for stat audit. And one of the best thing which I'm going to be giving it to you by the end of this video is the material which is going to be helping you out to prepare for statutory audit domain end to end. तो इस वीडियो को ध्यान से देखना and do not forget to check the files which are there in the descriptions which are there. Also, before I move forward, please don't forget to subscribe this channel and join our WhatsApp community link where we also post lot of vacancies related to the respective domains which are there. Now, mostly most of you will be targeting Big 4, Big 6 or top CA firms for their statutory audit domain. Now, let me talk one by one and what all types of questions are going to be expected here when you're going to be going for a stat audit domain. Most of the cases when I have seen is out, when you go for a stat audit domain, the first interview question which they ask is, what is your favorite accounting standard, right? Or what is your favorite Ind AS? Now, इसमें whatever Ind AS you have prepared it out or whatever AS you have prepared it out, they'll be grilling you based on this. You are requested to prepare end to end. ऐसा पढ़ के जाओ कि भाई कोई भी कोना वो पूछ ले, you will be able to answer it out, including disclosures. One of the biggest mistake which most of you do is you don't read the disclosures which is there. Now, इसमें से out of which there are few accounting standards and Ind AS which they expect you should have a basic knowledge of, right? Which includes AS2, AS9, AS10. If you are mostly appearing for an articleship interview, तो आपको AS का knowledge होना चाहिए, right? If you are a qualified chartered accountant and even if you are not a qualified CA, you are appearing for an interview, right? Ind AS 115, 116, 109 and Ind AS 2. इसका तो knowledge bare minimum होना चाहिए. Now, let me go one by one. Ind AS 115 में mostly they'll be expecting you and asking you the different set and series of questions which is going to be based on, say for example, if a company is a manufacturing company, how do it record revenue? If a company is into a real estate, वो revenue कैसे record करेगी? अगर company मान लो कोई एक टेक कंपनी है या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, राइट, तो कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? तो दे विल गिव यू मल्टीपल सिनेरियोज एंड स्टेप्स. इसके साथ साथ इंड AS 115 के 5 स्टेप्स है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. 116 again, leases which is there, operating versus financial lease. You should know the basic differentiation. What is the differentiation between AS and Ind AS for the leases standard which is brought in? तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए. Many times they might also ask you an applicability of Ind AS, तो please read it out very carefully. Ind AS 109 and Ind AS 2. Ind AS 2 पे काफी ज्यादा ग्रिलिंग होता है, मोस्टली व्हेन यू आर गोइंग इनटू एन नॉन एफएस साइड. एफएस और नॉन एफएस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ लीजिए. एफएस इंक्लूड्स, राइट, योर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, ये सब आपके एफएस साइड में आ जाता है, व्हिच इज फाइनेंशियल सर्विसेज. When you go into the non-FS, where mostly you're part of a manufacturing side, you will be asked the questions based on Ind AS 2, which is a method of valuation. When do you use FIFO, when do you use LIFO, right? How do you value an inventory? What all things are there? तो ये basic चीज़ आपको पूछा जाएगा. So these are the favorite accounting standards or Ind AS based questions which is there, right? Don't worry, by the end of the session मैं आपको एक शानदार सी एक ऐसी नोट्स दूंगा गाइस. ये नोट्स आप देख के है ना गदगद हो जाओगे. इस नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आने वाला. बट इन दिस वीडियो आई एम गोना बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस इफ यू आर शॉर्ट ऑफ अ टाइम और आपको फटाफट फटाफट प्रिपेयर करना है कि नहीं भाई ये तो पढ़ के ही जाना है. दिस इज समथिंग यू हैव टू रीड इट आउट बिफोर यू गोइंग फॉर इंटरव्यू. अगर ये पढ़ के नहीं गए, हाई प्रोबेबिलिटी आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि 90% ये क्वेश्चंस तो पूछेंगे. इसके अलावा और भी चीजें पूछ सकते हैं फॉर विच यू आर गोना बी प्रिपेयरिंग इट वेल. ना उसके साथ साथ दे विल बी एक्सपेक्टिंग यू दैट यू शुड हैव रेडी शेड्यूल 3. आप एक गुरु ज्ञान दे रहा हूं, दो चीजें आप पढ़ लीजिएगा. नंबर 1, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू रीड द शेड्यूल 3. नाउ व्हाट इज शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि कैसे बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो चीज है. अगर आपने शेड्यूल 3 नहीं देखा है तो इस तरीके का आप एक गाइडेंस नोट डाउनलोड कर लीजिए, राइट. अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल पुट इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन डाउनलोड द सेम, राइट. एक गाइडेंस नोट है, पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा दिया गया है. इस गाइडेंस नोट को रिकमेंडेड है आप पढ़ ले. इसके साथ साथ इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड रीड वन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. और अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़ना है तो आप जो भी ऑडिटर का सेक्शन है, सॉरी, एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए. अगर एनुअल रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ के होती है तो ऑडिटर रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, विच इज देयर, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. सर ये ऑडिट रिपोर्ट कहां से मिलेगी? ध्यान से समझिए, राइट. आई विल जस्ट टेल यू आउट हाउ डू यू गेट एन ऑडिट रिपोर्ट. से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एमआरएफ ऑडिट रिपोर्ट या एमआरएफ कंपनी. आप एमआरएफ लिख दीजिए. हर एक लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी हैव टू गिव द सेक्शन कॉल्ड एज इन्वेस्टर रिलेशन. तो जैसे आप जाएंगे इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शंस में, देखो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख जाएगा. क्लिक ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. वंस यू स्क्रॉल इट डाउन यू विल बी एबल टू सी द एनुअल रिपोर्ट व्हिच इज देयर, राइट. तो मुझे एनुअल रिपोर्ट 23-24 में मिलेगी. एंड वंस यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन, राइट, जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, राइट, यहाँ पे आपको ऑडिटर रिपोर्ट भी मिल जाएगा, राइट. यू विल गेट एन ऑडिट रिपोर्ट एज वेल.
ठीक है, तो ये चीज आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ना चालू करें, या हाईली रिकमेंडेड ये पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़े, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू रीड द एंटायर एनुअल रिपोर्ट, नो वरीज, राइट? एटलीस्ट रीड व्हाट इज समथिंग व्हिच आई हैव कॉल्ड यू एज ऑडिटर रिपोर्ट, व्हिच इज देयर। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ना, प्लीज डू चेक द वीडियो आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई हैव अपलोडेड वन ग्रेट वीडियो आउट ऑन व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टू एंड। ठीक है सर, ये हम पढ़ लेंगे। तो शेड्यूल 3 पे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। दे विल आस्क यू व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस इन शेड्यूल 3, व्हाट इज शेड्यूल 2, व्हाट इज शेड्यूल 3, राइट? तो दे विल बी एक्सपेक्टिंग यू द बेसिक नॉलेज ऑफ द सेम। नेक्स्ट, इसके अलावा दे विल आल्सो आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कारो, राइट? दे विल आस्क यू व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कारो 2020 एंड कारो 2016, राइट? ये बेसिक क्वेश्चंस व्हिच इज मोस्टली गोना बी आस्क्ड। One of the favorite question which is going to be asked in every interview is the assertion based. They'll ask you how do you audit a legal expenses, how do you audit a borrowings, right? अगर आपने अपना आंसर assertion basis पे दिया, if you're giving an answers based on assertion basis, high probability that you will be selected in the interview. सर अब ये assertion basis पे कैसे आंसर करना, देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, if you will be able to find out this reading material in the description itself and you can also get it out from my website which is there. ये मटेरियल जो है शानदार मटेरियल है, इस मटेरियल के बाहर से राइट हार्डली 5 या 10% क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर से नहीं आएंगे इफ इन इंटरव्यू व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? अब इसमें मैंने क्या किया, इफ यू सी इट आउट, मैंने एक बहुत शानदार सी शीट डाली है रिगार्डिंग, देखो जैसे कारो का मैं बोल रहा था, आई हैव अपलोडेड वन शीट ऑन कारो डिफरेंशिएशन 2016 वर्सेस 2020, राइट? दैट इज वन शीट एंड द सेकंड शीट व्हिच आई हैव अपलोडेड, गाइस दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके लिए फ्री में है भैया, तो ले लीजिए, लुत्फ उठा लीजिए इसका। मैंने क्या किया, असर्शन मैपिंग कर दिया है। इसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू में पूछे कि रेवेन्यू कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द असर्शंस रिलेटेड टू इट, हाउ यू आर गोना बी डूइंग एन ऑडिट फॉर अ रिस्पेक्टिव असर्शन व्हिच इज देयर। नाउ व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ बिग फोर, आई पर्सनली हैव डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम यूआई इन बिग फोर, राइट? तो मैंने स्टार्ट ऑडिट में किया है, तो हमेशा पूछा जाता है कि भाई बताओ लीगल एक्सपेंसेस का आप कैसे कंप्लीट, रेवेन्यू का आप कट ऑफ प्रोसीजर कैसे टेस्ट करोगे, कोई कहता है हम सैंपल्स लेंगे, कितने सैंपल्स लोगे कट ऑफ के लिए, वो भी पूछा जाएगा। तो अगेन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस आउट इन अ प्रैक्टिकली एंड इन अ वेरी नाइस वे। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये मटेरियल में लिख दिया कि भाई क्या होगा, कैसे आप कट ऑफ टेस्ट करोगे और ऑकरेंस कैसे टेस्ट करोगे, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, सब कुछ आपको ये आंसर करते आना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स प्लस मैं आपको आंसर शीट भी देते जा रहा हूँ। तो आंसर शीट बहुत शानदार तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज्जत से पढ़ के जाइए। Next, they will be focusing on different types of audit opinions which is there. मतलब 700 सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। They'll ask you when do you issue a qualified report, when do you issue a modified report, what does key audit matter? Can you please give me some example of a key audit matter which is there, right? अब जैसे कि मैंने आपको एक I've just shown you the financial statements, right? तो आप क्या करिए, देखो बड़ा ही सिंपल है। मैंने क्या किया, सिंपल से इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गए, यहाँ पे कंट्रोल एफ करके की ऑडिट सर्च करूंगा। यहाँ पे आप देखो की ऑडिट मैटर, मैंने अगर ऑडिट नहीं भी किया है, इवन इफ आई हैव डन अ डमी आर्टिकलशिप और नॉट अ ग्रेट आर्टिकलशिप, आप यहाँ पे जाके ओपन करिए, जस्ट रीड इट आउट, रीड दिस आउट, यू विल गेट अ एग्जांपल ऑफ अ की ऑडिट मैटर व्हिच इज देयर, राइट? आप जैसे इसको लिखेंगे आपको की ऑडिट मैटर मिल जाएंगे, और जस्ट रीड इट आउट एंड यू कैन गिव दिस एग्जांपल इन योर इंटरव्यूज व्हिच इज देयर, राइट? आप ओपिनियन भी पढ़ लीजिए, पूरा आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिसिंग है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? बाय रीडिंग आउट द है की ऑडिट मैटर पे आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। देन दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईएफसी। व्हाट इज आईएफसी? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड आईएफसी। पूछा जाएगा कि व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईएफसी, व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, दोनों में डिफरेंशिएशन है, प्लीज रीड इट आउट, आई हैव गिवन इट इन द मटेरियल इटसेल्फ। देन दे विल आस्क यू व्हाट इज वॉक थ्रू एंड व्हाट इज कंट्रोल टेस्टिंग। अगर आपको नहीं पता, जस्ट टेलिंग आउट व्हाट इज वॉक थ्रू। वॉक थ्रू मतलब होता है यू सी अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कोई भी एक ट्रांजैक्शन को लेते हो, राइट फ्रॉम इनिशिएशन टिल द रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि भैया चलो एक कैश में कैसे ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहा है, कौन इनिशिएट कर सकता है, राइट? कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे अथॉरिटी मैट्रिक्स क्या है, एवरीथिंग यू आर गोना बी रीडिंग इट आउट। एंड देन ऑल्सो यू चेक द कंट्रोल टेस्टिंग, है ना? तो आप प्रोसेस समझते हो, कंट्रोल देखते हो, और वो सब आप चीजें करते हो। इसके साथ साथ एक और चीज मैं कवर करना चाहता हूं, दे विल ऑल्सो आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू, इधर मैंने नीचे लिखा है, दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल मैपिंग एंड व्हाट कुड गो रॉन्ग। मतलब क्या होता है, तो दे विल आस्क यू, से फॉर एग्जांपल दे विल टेल यू वन ऑफ द कंट्रोल और प्रोसेस सेइंग दैट कि अगर मान लो किसी वेंडर को डबल पेमेंट हो गया, तो हम क्या कंट्रोल लगा सकते हैं। दे विल इंटेंशनली आस्क यू दिस क्वेश्चन जस्ट टू चेक योर माइंडसेट, और आर यू हैव यू वर्कड और आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग्स और नॉट। अब इसके लिए क्या कंट्रोल हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि सर हम लोग मेकर चेकर कंसेप्ट रखेंगे, और वी विल प्रिपेयर द बीआरएस एवरी मंथ। तो इससे क्या होगा, वंस द बीआरएस इज गोना बी प्रिपेयर्ड, तो वी विल बी वेरीफाइंग द सेम कि वेदर द पेमेंट इज डुप्लीकेटेड और नॉट। तो ये सब चीजें आप ट्रैक कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, अपने व्हाट कुड गो रॉन्ग लिखा और उसके अगेंस्ट आपने कंट्रोल्स मैप कर लिए, राइट? अब ये सब चीजें मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली और डिटेल्ड मैनर में सिखाई है मेरे स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास में।
इफ समवन हु इज रियली इंटरेस्टेड कि नहीं भैया आपने को ये सब चीजें जीरो से सीखना है प्रैक्टिकली कि एक ऑडिट कैसे होता है बिग फोर में, राइट, बहुत ही शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से, राइट, आपको मैंने सिखाई है मेरी स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास में, which is going to be covering everything which is needed to get into your big four और big six, राइट। 25 घंटे का कोर्स है, बहुत शानदार तरीके से बनाया है, आप वीडियो भी देख सकते हो क्या क्या चीजें कवर है, करिकुलम भी आप यहाँ से देख सकते हो क्या करिकुलम कवर किया गया इज देयर एंड इट इज रियली रियली नाइस। आपको ट्रस्ट में आपको मजा आ जाएगा देख के कि बोलेगा यार पूरा प्रैक्टिकली हमने सीखा। चलो आगे बढ़ते हैं। Then they will be asking you more questions related to two processes। दो processes काफी ज्यादा फोकस करते हैं, which is P2P and O2C। P2P जिसको नहीं पता उसे कहते हैं procure to pay, जिसे हम कहते हैं mostly purchase process, and O2C is the order to cash, मतलब more towards a sales side, sales process पे फोकस करते हैं। इन दोनों processes को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ लेना, देखो ये मटेरियल मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। और एक और बढ़िया सी चीज बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए मेरे वेबसाइट पे जाने का, cmonk.com पे, वंस यू आर हियर, यहाँ पे आप जैसे ही आप जाएंगे फ्री डाउनलोडेबल रिसोर्सेज में जाने का, जो भी डोमेन के मटेरियल्स चाहिए सभी डोमेन के मटेरियल्स आर अवेलेबल टू यू गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस देखिए इतना सारा आपके लिए कर रहे हैं, तो आप बढ़िया से इसको यूज करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सो दैट दे आल्सो डोंट मिस आउट द सेम। ओके, तो procure to pay and order to cash, right? Order to cash is more towards sales side, procure to pay is more towards the purchase side, which is there. Next, they will ask you questions based on materiality। पूछेंगे कि भैया मान लो एक सर्विस इंडस्ट्री है या एक स्टार्टअप कंपनी है कि आप उसका ऑडिट के लिए गए, तो हाउ डू यू कैलकुलेट अ मटेरियलिटी ऑफ द सेम, ये पूछा जाएगा। उसके बेंचमार्क्स क्या यूज करोगे वो है, और किस लेवल पे हम मटेरियलिटी निकालते हैं, तो इफ यू डोंट नो 3 लेवल पे हम मटेरियल निकालते हैं, एक ओवरऑल लेवल, राइट, एक परफॉर्मेंस लेवल और एक हमारा टिरावल लेवल। ओवरऑल लेवल मतलब पूरे कंपनी एज अ होल का, परफॉर्मेंस में मोस्टली वी फोकस ऑन द अकाउंट लेवल, एंड टिल लेवल इज योर अकाउंट ट्रांजैक्शन लेवल, है ना। तो 3 लेवल पे हम मटेरियलिटी निकालते हैं, प्लीज डू रिमेंबर द सेम। अब इसके बेंचमार्क्स क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, राइट, डिपेंडिंग ऑन अ कंपनी, डिपेंडिंग ऑन अ प्लेसेस यू आर गोइंग इन, राइट, उसके बेंचमार्क डिफाइन होते हैं। मैंने इसको नोट्स में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, आप देखोगे, आप रीड करोगे तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिलेगा कि अपना नेट बेंचमार्क क्या हो सकता है, ग्रॉस बेंचमार्क क्या होगा, फिर डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिनेरियोज क्या क्या बेंचमार्क्स हमारे हो सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू रीड दिस आउट वेरी केयरफुली। ओके सर, अभी आप मेरे पास इतना टाइम नहीं कि सो दैट आई एक्सप्लेन यू आउट, बट इफ यू वांट टू लर्न दिस मोर, मैंने मास्टर क्लास में इसको बहुत शानदार तरीके से डिटेल में समझाया। Then TOC versus COD, right? Test of detail versus test of control. They'll ask you out. There's a difference between two, right? यहाँ पे आप कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे प्योर नंबर क्रंचिंग, नंबर ऑडिट कर रहे हो, which is there. Provision versus contingent liability. I hope everybody is aware of. इसमें mostly they'll ask you the journal entry for provision. Contingent liability कोई journal entry नहीं होती है. Please do remember the same. Then they'll favorite part. DTA कब आएगा, DTL कब आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? DTA कब आएगा, DTL कब आएगा, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, they'll ask you out. With this, they'll also ask you provision for bad debts and provision for bad debts का क्या एंट्री होगा। इसके साथ साथ कुछ फॉरेक्स रिलेटेड, राइट, फॉरेक्स रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं आपको कि मान लो कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ, फिर ईयर एंड पे क्या होगा, उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट आइटम पे और पीएनएल आइटम पे, तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान में रखने का, राइट। दिस इज गोना बी मोस्टली आस्क्ड यू गाइस। देन essential steps in limited review। अगर आपने if you have a qualified चाहिए और if you are applying for a job, right, they'll ask you what is the LR, what is the difference between LR and finalization, उसमें क्या differentiation होता है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए। प्लस whichever level you are going as a fresher or as an article, they'll ask you questions based on Excel। They'll ask you, are you aware of pivot table, are you aware of VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, and most of the cases now I've seen a lot of companies have started giving the case study based इंटरव्यूज, बोलेंगे कि चलो आप ये डमी डेटा दिया है आपको, बेस्ड ऑन दैट यू डू एन एंटायर एनालिसिस एंड देन यू डिसाइड हाउ यू आर गोना बी डूइंग द सेम। ठीक है, तो ये सब केस स्टडीज आएगी। नाउ जस्ट टू टेल यू आउट बिकॉज मेनी ऑफ यू विल बी मिसिंग अप, काफी बार आपको बोला जाएगा, दो और क्वेश्चंस। फर्स्ट दे विल आस्क यू, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, राइट, एंड टू एंड स्टेप, एंड टू एंड प्रोसेस ऑफ स्टार्ट ऑडिट के, पूरा स्टार्ट ऑडिट कैसे करेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे स्टार्ट ऑडिट करेंगे, दैट इज वन क्वेश्चन। एंड सेकंड दे विल ऑलवेज आस्क यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्टार्ट ऑडिट, राइट, आपको स्टार्ट ऑडिट क्यों ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये पूरे दो क्वेश्चन आपको बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है। स्टार्ट टू एंड स्टार्ट ऑडिट क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ यू स्टार्ट विद प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं, देन वी गो फॉर प्लानिंग, देन यू चेक द कंट्रोल्स, ठीक है, देन यू चेक द टीओडी विच इज सब्सटेंटिव पार्ट, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, इस 5 स्टेप्स को मैंने अपने नोट्स में, राइट, इसको बहुत शानदार तरीके से बताया है कि कैसे कैसे प्री प्लानिंग होता है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, छोटा सा समझा देता हूं सो दैट यू गाइस डोंट मेस अप व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू। जैसे अब प्री प्लानिंग हो गया, तो प्री प्लानिंग में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है। इफ इट इज अ फर्स्ट ईयर क्लाइंट देन आई विल सी व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ अ क्लाइंट व्हिच इज देयर।
राइट, अंगूठा कहाँ से आ गया, हाँ लाइक करने बोल रहे हैं अभी, चलो वाह मजा आ गया। ठीक है, देन बैकग्राउंड चेक करूंगा, क्लाइंट एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल आउट करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा प्रीवियस ऑडिटर के साथ नेगेटिव कंफर्मेशन के साथ। तो यार ऐसा नेगेटिव कंफर्मेशन कैसे दिखता है वो भी हमें दिखा दो। एक सेकंड देखिए, मैं आपको नेगेटिव कंफर्मेशन एक दिखा देता हूँ कि एक नेगेटिव कंफर्मेशन कैसे दिखता है। ठीक है, तो आई डोंट नो आपने ऑडिट में देखा है, सीखा है कि नहीं सीखा है, बट जनरली आई दिस ऑल थिंग्स आई हैव टॉट एट माय स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास। तो ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि यार नेगेटिव कंफर्मेशन में आप क्या लिखोगे। नेगेटिव कंफर्मेशन में पुट आउट कि यू हैव एनी प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन टू द अफोरसेड अपॉइंटमेंट एंड अनडिस्प्यूटेड प्रोफेशनल फीस रिमेन अनपेड। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, एन अर्ली रिप्लाई शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड, हाउएवर इन केस ऑफ नो रिप्लाई रिसीव विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ अ लेटर वी शैल अज्यूम दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन। तो दिस मेक्स इट अ नेगेटिव कंफर्मेशन, है ना। तो ये सब चीजें अपने को पता होना चाहिए, अगर पता होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एज व्हेन यू आर गोना बी सिटिंग इन इंटरव्यू। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, स्कोप डिस्कस करेंगे, टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। रटा होगा आपने 210, राइट। अब एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे। अब एंगेजमेंट लेटर कैसे होता है वो चीज मैं आपको एक बार भी दिखा देता हूँ, ताकि यू शुड नो इट आउट कि एक एंगेजमेंट लेटर कैसे दिखता है। तो दिस इज हाउ द टिपिकल एंगेजमेंट लेटर लुक्स लाइक। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, जहां पे हम बताएंगे कि भैया मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफाइंड इट आउट, है ना। कि जैसे कि एज दोस्त चार्ज द गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, यू यू मतलब मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर इन अकॉर्डिंग विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ दैट एप्लीकेबल रूल देयर ऑफ, है ना। तो हमारा मोस्टली प्री प्लानिंग का पार्ट हो गया। इसके साथ साथ हम लोग इंडिपेंडेंस भी चेक करवाएंगे। इधर लिखा है देखो, विल ऑल्सो इंश्योर दैट इंडिपेंडेंस एंड ऊपसी रिक्वायरमेंट इज मेट। तो हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस आउट, बट ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज यू शुड नो इट आउट बिफोर यू गोइंग फॉर इंटरव्यू, और इफ यू डोंट नो इट डेफिनेटली इफ यू नो इट यू विल हैव एन एज। आपके दिमाग में रहेगा कि भाई ये चीज ऐसे होती है। और सीखना भाई, सीखना आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड डेफिनेटली गाइज यू कैन जस्ट चेक दिस आउट ऑन माई वेबसाइट, जहाँ पे आप जाओगे वेबसाइट पे मास्टर क्लासेस में देखोगे हर एक डोमेन की मास्टर क्लासेस बनी है, जहाँ पे आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली सिखाई गई है। मजा आ जाएगा गाइस जब आप प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे। अब इंडिपेंडेंस देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखा रहेगा कि डू यू हैव और एनी फैमिली मेंबर हैव अ पर्सनल रिलेशन विद द डायरेक्टर और एम्प्लॉइज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द फर्म क्लाइंट, यस नो, जो भी आपका है वो आप लिख दीजिए, विच इज देयर, है ना। तो जो भी आपका एक पूरा एक इंडिपेंडेंस रहेगा दैट इज समथिंग यू आर गोना बी प्रोवाइडिंग इन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया विच इज गोना बी देयर रिलेटेड टू प्री प्लानिंग। After the pre-planning is done, then what you'll do, you'll go for a planning. You'll check the financials of the company, you'll check the previous year financials of the company, you'll do an analysis, you'll calculate the materiality, you will find out any variance which is there, and you also prepare a ARD or OAR document which is there. And parallelly, right, you map the significant account कि कौन कौन से मेरे अकाउंट सिग्निफिकेंट है, कौन कौन से मेरे अकाउंट इनसिग्निफिकेंट है, मटेरियल नहीं है ना, जिसको मैं ऑडिट नहीं करूंगा। मटेरियलिटी कैसे निकालना वो सबके पूरे बेंचमार्क रहेंगे, ये सब मैंने प्रैक्टिकली सिखाया कोर्स में, तो आप देख सकते हो जब आप देखोगे। देन रिस्क असेसमेंट, थर्ड स्टेप इज रिस्क असेसमेंट, जहां पे आप सबसे पहले वॉक थ्रू करोगे, ट्रांजेक्शन समझोगे, फिर कंट्रोल मैप करोगे, कंट्रोल टेस्ट करोगे। काफी सारे प्रोसेसेस रहेगा, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस फॉर विच यू आर गोना बी डूइंग इट, राइट। काफी सारे प्रोसेसेस के लिए रहेंगे। सैंपल कितने लेना कंट्रोल टेस्टिंग में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जस्ट हैव अ रन थ्रू इट, है ना। प्रोक्योर टू पे, परचेस प्रोसेस, जो मैं आपको बोल रहा था, रीड इट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आस्क यू डिफरेंस बिटवीन पीओ इनवॉइस एंड जीआरएन, व्हाट इज थ्री वे मैच, ये सब चीजें आपको पूछी जाएगी, राइट। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल, थोड़ा सा पूछा जाएगा। व्हाट इज थ्री वे मैच, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, प्लीज रीड इट आउट। कौन सा पहले इशू होता है, परचेस ऑर्डर या परचेस रिक्विजिशन, ये सब भी कब पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा आप रीड करोगे तो विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। ठीक है, डोंट गेट स्ट्रेस्ड, राइट, बट यस यू शुड नो इट आउट बिफोर यू गेटिंग रिजेक्टेड। ऐसा नहीं हो भाई ये सब पढ़ लोगे ना तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू पुट एन एफर्ट, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कंपनीज भी वही कैंडिडेट को लेना चाहेगी जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है, जिसको ऑलरेडी चीजें आती है, राइट। एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, बैंग ऑन, नथिंग लाइक इट, इन यू आर एट एज, है ना। तो दैट इज देयर। सिमिलरली अदर प्रोसेसेस के बारे में मैंने यहाँ पे दिया है नोट्स में, तो डेफिनेटली जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा। सबसे अच्छी चीज क्या की है मैंने, आफ्टर यू रीड इट आउट आई हैव गिवन द कीवर्ड्स, कि आप ये कीवर्ड्स अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, एंड यू कैन पुट द सेंटेंसेस आल्सो इन योर रेज्यूमे आफ्टर यू हैव read this out or if you have worked on this areas. ठीक है, then the next part is your substantive testing. Substantive testing further divided into two: test of detail and substantive analytical procedure, right. फिर हर एक प्रोसीजर्स को मैंने इन जज से समझाइए कि से फॉर एग्जांपल आप असर्शन मैपिंग क्या होता है वो मैंने बताइए यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल योर ऑडिटिंग एन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री कैसे ऑडिट होगा वो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इन्वेंट्री में काम किया तो क्या कीवर्ड्स डाल सकते हो, एंड इसके साथ साथ अपने सेंटेंसेस क्या डाल सकते हो और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे। आफ्टर दैट इज डन, मूविंग टू द लास्ट स्टेप विच इज द कंक्लूजन स्टेप, राइट। कंक्लूजन पे आ जाता हूँ।
कंक्लूजन में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेनेवर यू आर कंक्लूडिंग द थिंग्स आउट। एक सेकंड हो जाइए। लास्ट स्टेप है ना, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे यू हैव टू फिल आउट द डिस्क्लोजर चेकलिस्ट फॉर एएस और इंडिया, शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग चेक करोगे, पेनलाइजेशन देखोगे कारों पे, राइट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का चेकलिस्ट फिल करोगे, सब्सिक्वेंट इवेंट टेस्टिंग करोगे, लिटिगेशन ट्रैकर यू विल फिल इट आउट, यू विल रीअसेस द मटेरियलिटी, व्हाई रीअसेस, बिकॉज ड्यूरिंग एन ऑडिट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कि मेरे रेवेन्यू के नंबर्स चेंज हो गए और थिंग्स माइट हैव चेंज, तो इसलिए मेरे को फिर से रीअसेस करना पड़ेगा। कास्टिंग मतलब होता है टोटलिंग, राइट, टोटलिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग, एंड पैरेलली डोंट फॉरगेट योर एमआरएल, राइट, एमआरएल है। मैं अभी थोड़ा सा फटाफट ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, एंड डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गोना बी रीडिंग इट आउट और वाचिंग द लेक्चर्स इन अ डिटेल मैनर, एंड देन यू पैरेलली गिव एन ओपिनियन, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे नोट्स यहाँ पे खत्म नहीं हुए। देन आई हैव गिवन द कारो का चेकलिस्ट, अ सेशन मैपिंग, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज आई हैव गिवन द 101 इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच इज देयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जाएगा, ठीक है। तो जस्ट रीड थ्रू इट, गो थ्रू इट, एंड थिंक दैट इज गोना बी हेल्पिंग आउट। लास्ट वन मोर थिंग बिफोर आई कंक्लूड, वंस यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, मान लो आपको अब चल हो गया मेरा इंटरव्यू का, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ यार, लेट्स सी वेदर आई एम एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज और नॉट। Go to click on tools.cmong.com, जाने का tools.cmong.com, once you're here click on AI interview bot, right, start practicing, once you click on this start practice, select the domain, say for example I am a part of finance guy, अपने दोस्त भाई दीदी भैया जो भी आपका है उनको भी दे सकते हो, एचआर सेल्स मार्केटिंग जो भी जहाँ पे टेक्नोलॉजी, तो फाइनेंस अकाउंटिंग वाले, हमें जाना है बेटा स्टार्ट ऑडिट में, तब तक स्टार्ट ऑडिट। once you're here experience level, हम तो भी फ्रेशर है, और if you're experienced folk you can select whatever you are, select this, if you have a CV bang on upload it, if you don't have it what you do, राइट, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन स्टार्ट, है तो अपलोड करे, अपलोड करोगे तो दे लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीवी, नहीं है तो डायरेक्टली स्टार्ट पे क्लिक कर दो, राइट। आफ्टर दैट इज वन इट इज गोना बी टेकिंग 10 to 15 सेकंड्स ऑफ टाइम, 10 से 15 सेकंड टाइम लेगा टू लोड इट आउट, टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस, एंड वंस दैट इज डन दे आर गोना बी, द बॉट इज गोना बी आस्किंग यू द टेक्निकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो ये मेरे पीछे हरा पर्दा है ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आई हैव टू टेस्ट द माइक फर्स्ट, आई एम रेडी, माइक टेस्टेड, and now it is going to be asking me a series and set of questions which are there. Good morning, CA Shivam. Could you please introduce yourself and tell us a bit about your background and what motivated you to pursue a career in statutory audit? Right, I told you out the first question which is going to be asked to you is why stat audit. अब देखो मैं जैसे भी इसको आंसर करूंगा ये क्या होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, दिस इज गोना बी रिकॉर्डिंग, राइट, एंड एट द एंड आई एम गोना बी गेटिंग अ फीडबैक ऑन द सेम गाइस, ठीक है। तो जैसे मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा आई कैन क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गोना बी गिविंग यू द फीडबैक एंड इट इज लाइक अ रियल मॉक इंटरव्यू व्हिच इज गोना बी देयर, तो Can प्लीज you बेटा discuss any practice. project or internship experience you have had during your CA training and what impact it had on your understanding of statutory audits? Okay, so these are going to be a series and set of questions which are going to be there, and one of the best thing is that after you prepare it out you will be getting a feedback which is there, right. We have tried to kept it at very nominal price or almost free है, right, which is there, right. tools.cmong.com पे जैसे जाओगे 50 coins में हो जाता है, right. Once you log in you get a 50 coins, once you complete your profile you get an additional 15 coins, इसके साथ साथ you can try typing test and other test which is there, which is going to be helping you out. Done. So with this, we'll complete a detailed discussion on interview questions which is asked on for a statutory audit domain. I would request you to please go through the links which are there in the description and check the files which I've shared. And don't forget to subscribe this channel. And one of the great thing which I've done is I've created a playlist of a statutory audit on my YouTube channel. Do check it out. It is going to be helping you out to prepare well. And do check the masterclass if you're serious and interested for